Hello, friends. Welcome to the 7th October lecture series, which we have been continuing so that we can take up important areas and ideas from general studies and also link it with the syllabus of the UPSC examination. And otherwise, also, it provides an insight into कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, what you're supposed to do. There are other elements also which we are providing to our candidates and as a part of the learning process. So, welcome to Ansarkari. Please do like, share, and subscribe our channel. And also, in order to get the best and also customized services and learning program, you can always get back to us. We will try to support you the best. Starting with the understanding that when a full page ad comes up, which it wants to showcase as a part of industrial, or you can say as a part of progress of any state. So there are different kind of elements which you can also bring in your answers. जैसे यहाँ पर मैं आपको कह सकता हूँ tourism enclave, future ready enclave, agri business enclave, startup enclave and MSME enclave. So there are different areas which are shown. तो आप भी essay, ethics or anywhere wherever you feel like you can put these elements differently. This was just one of the suggestions. Swachh Sarvekshan 2022, Madhya Pradesh number one in India, and it is committed and it wants to put forward the best. So Indore ranks as India's cleanest city for the sixth time in row, and then the cities are ODF plus plus certifications are there, and they have got star ratings also in Swachhta. So 19 cities are there which are among top 100 cities with less than 1 lakh population category. So this is a development stage. This is wonderfully positive news in that sense. Coming to some elements of the economics and also general studies paper 3, especially from the prelims perspective, that we can for example we can see and link budget. On the budget review, macro worries are back and amid global recession fears. This is how the keyword is. So the keyword says global recession fears and the macro worries. So what are you gonna see? Current account deficit, you have to just see that from the financial year 2021-22 up tak it is coming down or it is coming up. It is more than the previous time or it is less than the previous time. For example, in financial year 21-22 it was only 1.2% of GDP. Now it is raised to 2.8% of GDP. Trade deficit भी देखिए आप, it is 149.47 billion, and then fiscal deficit also we have to see it is more or less, but there it is in terms of the whole financial year, and then it is in terms of the two quarters, April, June, January to March and so on. So the idea is what is the impact जो हम already discuss करते आए हैं in our previous lecture series. If you see it clearly, you will find that it is showcasing how it has been and the idea that it has to be used perfectly, that is to be seen. So political leadership is also having a role, and apart from the political leadership or the local administration at the state level, there is a role of global events also which we have been discussing regularly. So macroeconomic worries are back, ये कहने का मतलब ये है. So the point is the government wants to see कि आखिर impact कैसे हो रहा है. We say that GDP growth is raising, we have the steady tax revenues, हमारे GST collections भी बढ़ रहा है, और तो और अगर हम बोलें जो हमारा इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन है, द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बेसिस वर्सेस अदर कंट्रीज, वो भी हम टैकल कर रहे हैं. बट ट्विन डेफिसिट्स, ट्विन डेफिसिट दैट इज फिजिकल डेफिसिट एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट. फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, फिर हम बात करें जॉब क्रिएशन की बात करें, फिर हम बात करें डिस्ट्रेस इन एमएसएमई, फिर हम बात करें हाइक इन द रेपो रेट बाय आरबीआई, फिर हम बात करें डैम्पनिंग कंजम्पशन, कंजम्पशन कम हो रहा है, लेकिन साथ साथ में हम रिकवरी की बात करें तो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ऑल्सो इन ऑटोमोबाइल सेक्टर देयर इज अ रिकवरी. टैक्स रेवेन्यू ऐसा हमने ऑलरेडी बोला इट इज हाई. बट देन अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए रेवेन्यू ट्रेंड इज गोइंग टू बी नॉट सो हाई, देन देयर हैज टू बी चेंज विच इज टू बी ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट. अगर रिसीट इंक्रीज हुई तो बहुत अच्छी बात है. अगर रिसीट्स ऑफ रेवेन्यू आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज, देन देयर इज गोइंग टू बी कट इन द एक्सपेंडिचर. आपको एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा.
एडिशनल स्पेंडिंग अगर आप फिर भी करेंगे तो उससे सब्सिडीज का बिल बहुत बढ़ जाएगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अगर हम बात करें, इट इज एडिंग ए फिजिकल बर्डन बढ़ा रहा है, लेकिन हमें रेशनलाइजेशन की भी जरूरत है। सो द सेंटर का जो नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, नॉन इंटरेस्ट यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है लेकिन उस पे उसको कोई कोई भी उसको फायदा नहीं होने वाला है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सो दिस कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज गवर्नमेंट इज रिस्ट्रेनिंग, गवर्नमेंट अपने आप को रोक रही है उस तरफ खर्चा करने से। सपोज जो बजट है उसके अंदर अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें, इट इज 6.4% ऑफ द जीडीपी, वो अगर उतना ही रहता है तो बात ठीक, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा चला जाता है बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, देन चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन दैट सेंस, इन जनरल वर्ड्स इफ वी से। सिमिलरली इज द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट फेड रिजर्व, यूएस फेडरल रिजर्व इज गोइंग टू टेक द स्टैंड। सो इंडिया की जो करंट अकाउंट फंडिंग है वो ज़्यादा चाहिए। डेफिसिट अगर बढ़ता जाएगा तो फिर जो है हायर एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स अगर होंगे, क्रूड ऑयल इंपोर्ट होगा, हायर कॉस्ट पे होगा, तो नेचुरली दिक्कत होंगी, उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स भी होंगे। स्पिल ओवर इफेक्ट्स इसके भी होंगे और स्पिल ओवर इफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई साइड के भी होंगे। और स्पिल ओवर इफेक्ट इस बात के भी है कि चाइना स्लो डाउन हो रहा है, प्राइसेस वॉलेटाइल हैं, सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन ज़्यादा हैं, यूरोप में क्या हो रहा है, और रशिया यूक्रेन वॉर भी कहाँ जा रहा है। अगर क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो इंडिया को नट और टाइट करने पड़ेंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मस्ट शो मच लेवल ऑफ ज़ील एंड इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली आप सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन प्राइस प्रेशर्स अगर बढ़ते जाएंगे, कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट बढ़ता जाएगा और अनफेवरेबल पब्लिक पॉलिसीज रहेंगी तो काम नहीं बनेगा। अनफेवरेबल पब्लिक पॉलिसीज का अर्थ है दैट देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ फैसिलिटेशन बाय द गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू है, टेक्नोलॉजी के थ्रू है, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू भी है। सो न्यू बिजनेस आएंगे, स्टार्टअप्स भी नए नए आएंगे, एमएसएमई को सपोर्ट मिलना चाहिए, एनपीएस को रोकना पड़ेगा, देन ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प सर्विसेज सेक्टर ऑल्सो इन दैट सेंस। सिमिलरली अगर हम एक और इंटरनेशनल रिलेशंस के एंगल से बात करें न्यूज आइटम की, देन वी आर सेइंग दैट इंडिया is abstaining at United Nations on vote for debate on human rights in China Xinjiang। इंडिया ने abstain किया क्योंकि सारा का सारा वर्ल्ड इस बात से बड़ा परेशान हो रहा है कि भाई रिसोर्स रिच नॉर्थ वेस्टर्न चाइनीज प्रोविंस में सालों से हो क्या रहा है। आप अगर एटलस देख चुके हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एटलस में लोकेशन चेक कीजिए। जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था उसमें बात की गई कि डिबेट की जाए क्या ह्यूमन राइट्स पोजीशन है, क्या कंटेंशन है, कहां पर ये कंटेंशन आपकी जिंगजियांग प्रोविंस में क्या है। ऑब्वियसली चाइना उसको रिजेक्ट करेगा या बाकी भी उसको रिजेक्ट करेंगे, ऐसी कोई बात वो करना नहीं चाहेंगे। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल चेक आउट इट्स स्टेटस आई मीन टू से चेक आउट इट्स प्रेसिडेंट, चेक आउट इट्स हेडक्वार्टर्स, चेक आउट इट्स स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इट्स क्रिएशन, तो आपको पीटी के लिए काफी मसाला मिल जाएगा। This resolution was rejected in the 47-member council after 17 members voted in favor and 19 members voted against, जिसमें इंडिया भी थे और 11 एब्सटेंशंस भी थे, इंक्लूडिंग इंडिया, ब्राजील, मेक्सिको, यूक्रेन। जो कोर ग्रुप था कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूके एंड यूएसए, और भी स्टेट्स जिन्होंने को स्पॉन्सर किया था जैसे टर्की, दे वांटेड कि उसको उठाया जाए। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है दैट द यूनाइटेड नेशंस टॉप ह्यूमन राइट बॉडी ने कोई प्रपोजल लिया डिबेट के लिए और काउंसिल उसको फेल हो गया करने के लिए। आप चेक कीजिए उसके मेंबर्स कौन कौन है, आप चेक कीजिए इसराइल मेंबर है क्या उसका, आप चेक कीजिए यूएस उसका मेंबर है क्या, देखिए आप, फिर आपको उसकी टोपोग्राफी समझ में आएगी। सो द क्लोज वोटिंग हाईलाइट होती है, उनका ये कहना है कि ये दिखाती है कि स्टेट्स आर विलिंग टू टेक स्टैंड ऑन अ प्रिंसिपल, और चाइना के राइट वायलेशंस के ऊपर इससे लाइट जाती है। और इस बात से ये भी कहना है काउंसिल का दैट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे चाइना के क्राइम कम नहीं हो जाते, इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज टू वर्क सूनर और लेटर। मूविंग फॉरवर्ड, टेकिंग अप अदर की डेवलपमेंट्स एंड ऑल्सो इशू, फॉर एग्जाम्पल स्टेट। अब आप देखेंगे ऐड कभी आप अरुणाचल प्रदेश का नहीं देखते, ऐड आप कभी असम और अब मणिपुर और मिजोरम का क्वेश्चन वहां से भी आएंगे।
बार बार यही स्टेट, अगर नॉर्थ स्टेट्स, अगर उत्तराखंड ही ऐड देते रहेंगे और आप सोचेंगे उसका ही मसाला आप बनाते रहें, तो काम नहीं बनेगा. You must know all the important peaks. You must know all the important sites of Uttarakhand, including the national parks and biosphere reserves, and including some architectural elements also. या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट है, तो देखिए वो कहाँ से कहाँ जा रहा है. देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचार, कर्णप्रयाग, कहाँ जा रहा है वो, 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, क्या उसकी सीक्वेंस है, क्या उसका डायरेक्शन है, कोई उसमें बुराई नहीं है. सिमिलरली मानस खंड सर्किट में क्या क्या आएगा, आप देखिए, उसको गूगल करके देख लीजिए. जगेश्वर टेम्पल, आप देखिए जगेश्वर टेम्पल बना कब था, क्या है वो आखिर, व्हाट इट इज शोकेसिंग. तो ऐसे करके हमारा एक क्लैरिटी बढ़ती है, हमारा एक माइंडसेट हमारा डेवलप होता है. सो इन एग्जामिनेशन, इवन इफ समथिंग नॉनसेंस which we feel is there, which is actually not a nonsense, we can also handle that in a well manner. हरियाणा गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि जो प्रपोज्ड हमारा सफारी, जंगल सफारी पार्क है, उसके अंदर 10 डेजिग्नेटेड जोन्स होंगे. 4 जोन्स फॉर बिग कैट्स, लायन, टाइगर, पेंथर, और चीता के लिए भी एक जोन होगा. लार्ज हर्पिटेरियम्स, तो हर्पिटेरियम क्या होते हैं आप देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हर्पिटेरियम. रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस भी वहाँ होंगे. क्या आप जानते हैं रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस पे भी पीटी में अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए रेप्टाइल क्या होता है, एम्फीबियन क्या होता है, और सबसे यूनिक और कॉमन फीचर उसके क्या होते हैं. बर्ड पार्क भी होगा, हर्बीवोर्स भी होंगे, एक्सोटिक बर्ड, एक्सोटिक एनिमल बर्ड्स क्या होते हैं, एक्सोटिक एनिमल बर्ड्स, डू चेक आउट. Underwater world, nature trail, vegetable and botanical garden. So these are the elements of safari park, but then I'm saying we must know that उसका होता क्या है, what it means. That is also very very important. एक आपको 5 मिनट लगेंगे, आप देख लेंगे और आपको बात समझ में आ जाएगी. Moving further, to pick up the idea and element, we have been talking about how the political leadership's goodwill is very very important in order to make sure that honorable home minister, when he was supposed to when he was supposed to address a rally in at Shaukat Ali Stadium in Baramulla, then one of the slain policeman's family, they wanted him to pay tribute. So they first, it was planned that the family will be interacting with the honorable home minister at the public rally, but then finally minister Saab decided that he will go to the home, or to the grave yard of the slain policemen जो शहीद हुए थे. So it was a wonderful gesture in that, you can say. So definitely such ideas definitely earn goodwill and they must be appreciated. This is one of the examples. Similarly, one more example I am giving you from the perspective of ethics, और कैसे सरकार काम करती है. जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रेलवे वेबसाइट है, 13 लाख विजिटर्स आर देयर एवरीडे, पर इतना फालतू उसके ऊपर सौदा है, इतनी फालतू चीजें हैं कि वो अपडेटेड नहीं है या फिर वो रेलिवेंट नहीं है. So it has been decided that nodal officer, or you can say जो भी रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं, दे हैव डिसाइडेड दैट कि एक आंख रखी जाएगी, उसके ऊपर एक आई रखी जाएगी, एक देखा जाएगा कि क्या क्या रेलिवेंट मटेरियल होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी अपडेटेड वेरी कंटिन्यूसली, नॉट इन अ पीसमिल मैनर. और एक मंथली रिपोर्ट भी कंप्लायंस की भेजी जाएगी. तो आप देखिए, जो कंप्लायंस पढ़ाई में अगर आप अभी लेके आते हैं, तो वही आपको सिस्टम में बाद में लेके आनी पड़ेगी. आज आपकी पढ़ाई में कंप्लायंस नहीं है, तो कल सिस्टम में भी नहीं होगा, आप पहुंच ही नहीं सकते वहां तक. सो उसका मिनी प्रोटोकॉल सिस्टम का आपको अभी से ही दिख जाता है. इसीलिए मैं कहता हूं दैट वर्क विद ऑनेस्टी, वर्क विद इंटीग्रिटी एंड वर्क विद पेशेंस. अपनी मर्जी से आप छुट्टी ले लेंगे, अपनी मर्जी से आप जो है फेस्टिवल्स मनाएंगे और फिर चाहेंगे कि काम भी हो जाए, तो बहुत मुश्किल है. आपको इतना स्मार्ट होना पड़ेगा. दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन शेयर विद यू. Coming further, to take up the another keyword, dark web. सो इंडिया में क्या कारण है कि बहुत सारे यूथ म्यांमार पहुंच गए, थाईलैंड पहुंच गए, कहीं और से जाना था कहीं और, पहुंच गई कहीं और, एंड देन देयर लाइफ इज इन डेंजर. मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज लुकिंग इनटू इट. इट इज फाइंडिंग दैट देयर आर अदर सच dubious dubious challenge, dubious offices are there, जिसके challenges इंडियंस को फेस करने पड़ते हैं. सो इंडियंस क्या इतना वो है कि दे आर रेडी टू गो एंड वर्क इन सच हॉरिबल कंडीशंस और सच डेंजरस कंडीशन, आई शुड से. तो दिस इज व्हाट इंडिया हैज टू टैकल. दिस इज अ न्यू इमर्जिंग प्रॉब्लम. डार्क वेब फर्म्स, जो कि म्यांमार या फिर आप कह लीजिए
थाईलैंड, कम्बोडिया, इन द पार्ट्स विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल, वहां पर है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी. ट्रू रेजिस्टेंस बिगिंस विद पीपल कन्फ्रंटिंग पेन एंड वांटिंग टू डू समथिंग टू चेंज इट. देखिए दोबारा बोलता हूं मैं, ट्रू रेजिस्टेंस बिगिंस विद पीपल कन्फ्रंटिंग पेन एंड वांटिंग टू डू समथिंग टू चेंज इट. ये गांधी जी ने ये बात कही है कायदे से, जो बेल हुक्स अपनी भाषा में कह रहे हैं. तो गांधी जी ने जो कहा वो दुनिया भी कह रही है. ट्रू रेजिस्टेंस बिगिंस विद पीपल कन्फ्रंटिंग विद पेन एंड वांटिंग टू डू समथिंग टू चेंज इट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर आपसे इंटरव्यू में बात पूछी जाती है तो आप जनरली ये डिस्कस कर सकते हैं कि सारे चेंजेस ठीक हैं, सरकार आप नहीं लाना चाहते, ठीक है, पर जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक कोई बात नहीं बनेगी. Local elections were already there, but the local elections were जो local elected representatives and they are not able to bring any change, and there is a perception that whole control and command is by the central government. ये perception जब तक change नहीं होगा, जब तक वहाँ पे elections नहीं होंगे. So election by the people, voting by the people, and key thing will not be a key thing will only way forward for the masses to run. अगर मैं बात करूँ रीजनल पॉलिटिक्स की, फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल्सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अदरवाइज ऑल्सो रीजनल पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द key elements of regional political parties. For example, Dravidian politics is based on welfare. Dravidian politics is based on social justice. Dravidian politics is based on self-respect. Dravidian politics is based on the idea of social justice to all and non-discrimination. So Dravidian politics is also based on the idea of caste discrimination must be reduced, or there must not be any prejudices. अगर मैं यही बात करूँ तेलंगाना की, तो तेलंगाना लैंग्वेज पे नहीं बना, क्योंकि हैदराबाद माई मीट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना लैंग्वेज इज सेम. इट इज नॉट लिंग्विस्टिक हेरिटेज, इट इज कल्चरल हेरिटेज. इट इज अनइक्वल डेवलपमेंट दैट वेंट ऑन टू पोर्ट्रे दैट काइंड ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपसे सोशलिज्म की, सो जेडीयू in Bihar or even JDU in Karnataka, they talk about socialism, they talk about Lohia, Ram Manohar Lohia's ideas. Similarly, if I talk about West Bengal, Mamata Banerjee, she also talks about, self-respect. She also talks about the regional pride. So regional pride is a factor in both Telangana, in both Tamil Nadu, also in the case of regional pride is also in the case of West Bengal. But when we talk about Kerala, so Kerala development model is different. Kerala development model is based on communism, communist politics. So communism believes in the idea that we are not going to bring religious element into it. We are going to follow the constitution, but we are going to promote education, we are going to promote health, we are going to promote literacy. So ये सारे के सारे फेडरल एलिमेंट्स हैं. अब इनमें से आप सोचिए कौन ऐसा है जो एकदम से बीजेपी के हिंदुत्व को डायरेक्ट टक्कर दे देगा, जो कि वो हिंदुत्व जो कि डेवलपमेंटल एलिमेंट के साथ इंटेंगल्ड है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट, रायतु बंधु स्कीम या फिर कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट या फिर मिशन काकतिया, ये सब तेलंगाना के हैं. क्या ये आपके जो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर है उनके लिए काफ़ी हैं, केसीआर के लिए, के चंद्रशेखर राव के लिए, दैट ही विल बी एबल टू बिकम ए नेशनल फिगर? और इसमें आम आदमी पार्टी को भी जोड़ लीजिए. तो आपको एग्जामिनेशन में भी नाम नहीं लिखने हैं, आपको काम लिखने हैं, आपको आइडेंटिटी लिखनी है, आपको आइडिया लिखने है और उसको कम शब्दों में बताना है, और वो भी पूरे के पूरे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. देन यू गोट गेट गुड मार्क्स, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से बात करूं, बात ये नहीं है कि राइस का एक्सपोर्ट हमने कम कर दिया. राइस का एक्सपोर्ट हमने कम करके फ़ायदा भी किया है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए फ़ायदा भी किया है, डोमेस्टिक प्राइसेस के लिए फ़ायदा भी किया है, लोकल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन नुकसान भी किया है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए. नुकसान भी किया है हमने, क्योंकि 90% जो राइस है वो तो डोमेस्टिकली ही कंज्यूम्ड हो जाता है, 10% जो है वो एक्सपोर्ट होता है. तो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टू मोर देन 130 कंट्रीज, और 40% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड हमारे पास है. अगर वो ट्रेड अगर आप छोड़ेंगे तो ऐसी कंट्रीज के पास जाएगा जो मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, लेकिन फिर भी हमारी प्रोडक्टिविटी पर एकड़ या प्रोडक्टिविटी एरिया जो है हमारा, प्रोडक्टिविटी जो हमारी जो है वो कम है. अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे और प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड एवरेज की अगर हम बात करें, यील्ड की बात करें, तो वर्ल्ड एवरेज से हमारी जो यील्ड है सेम एरिया में, वो हमारी चाइना से कम है, वो हमारी थाईलैंड से कम है. नो, थाईलैंड से हमारी ज़्यादा है, लेकिन चाइना से हमारी कम है, पाकिस्तान से हमारी ज़्यादा है, लेकिन वियतनाम, यूएस, उनसे भी हमारी प्रोडक्टिविटी या यील्ड जो है वो कम है. हमें यील्ड बढ़ानी होगी. यील्ड बढ़ानी होगी तो हमें राइस इंटेंसिफिकेशन टेक्निक, जो जैसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, उसको हमें लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वही वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस है. तो क्या आप ये बात मानते हैं कि जितना चावल आप उगा रहे हो, और अगर वो उसके लिए बहुत सारा वाटर भी चाहिए डेफिनेटली, जो 49% हमारा जो राइस कल्टीवेशन है वो ग्राउंड वाटर पे इंडिया में डिपेंड करता है, उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज हम नहीं दे पाते, ग्राउंड वाटर देना पड़ता है. तो ग्राउंड वाटर हमारा, आप नहीं सोच रहे कि धीरे धीरे वो डिप्लीट होकर बाहर जा रहा है.
फूड एंड एग्रीकल्चर अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो एग्रीकल्चरल वाटर विड्रॉल, क्या बोला मैंने, एग्रीकल्चर वाटर विड्रॉल, यानी कि जितना आपका टोटल वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है उसका परसेंटेज एग्रीकल्चर में कितना जा रहा है वो बढ़ गया है, 36% हो गया इंडिया में आज की डेट में, कम होना चाहिए। ऐसे टोटल पर कैपिटा रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स, टोटल पर कैपिटा वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स, यू नो, ताकि वो रिन्यू भी हो सके, टोटल पर कैपिटा वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स वो भी हमारा कम हो गया है। तो दोनों मामले उल्टे हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, फूड सिक्योरिटी के हिसाब से, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, और ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस के हिसाब से भी। पर कैपिटा रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स हमारा बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब है पर कैपिटा रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स अगर कम हो रहा है और हमारा जो है आपका जो ग्राउंड वाटर विड्रॉल जिसे मैं कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर वाटर विड्रॉल, वो हमारा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरी कंट्रीज को जो राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी साथ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं लॉन्ग रन में, क्योंकि इंडिया का जो रिस्ट्रिक्शन हो रहा है वो एक तरीके से फायदा भी कर रहा है और नुकसान करेगा लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज को। लो इनकम लाइक आप नेपाल या फिर अफ्रीकन कंट्रीज इंक्लूडिंग सेनेगल, बेनिन, देखो सेनेगल और बेनिन की लोकेशन क्या है। सो राइस एक्सपोर्ट्स जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट वाटर का कर रहे हैं, हम ये बात मानते हैं, इसलिए पीटी में कॉन्सेप्ट आ सकता है या पहले एक बार आ भी चुका है, वर्चुअल वाटर ट्रेड। वर्चुअल वाटर ट्रेड, ये वर्चुअल वाटर ट्रेड हो रहा है, तो रिलेटिव पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इंडिया में कम हो रही है, इसीलिए जो है जो कंट्रियां इंपोर्ट कर रही हैं उनसे तो हमारा कम है, लेकिन थाईलैंड और वियतनाम की पोजीशन ऐसी नहीं है, तो इसीलिए इंडिया को कुछ तो सोचना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको कहा, आप सोचिए कि क्या हो सकता है, आप सोचिए क्या हो सकता है। आईसीआर का रोल होगा कि इसके लिए कौन आएगा आगे, आईसीआर आएगा कि इसके लिए जो है आईएआरआई आएगा कि इसके लिए जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रोल होना चाहिए कि फार्मर कमीशन के एमएस स्वामीनाथन साहब ने भी कोई बात की थी कि आखिर होगा कैसे, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कुछ कर रही है, कौन कर रहा है और कहाँ हो रहा है और नहीं हो रहा, तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाकर क्या कर सकते हैं, क्या कौन सा लेटर लिख सकते हैं आप, शायद आप पूर्णिमा वर्मा जी से ही कांटेक्ट कर लें और उसके बाद से एक मुहिम स्टार्ट हो, तो कहीं सर भी सही शुरुआत हो सकती है। दैट इज व्हाट वी हैव टू सी फॉर द प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। कल हमने बात की थी दैट इट हैज रिटन अ लेटर बट देन इट हैज नॉट बीन रियली अप्रिशिएटेड, लेकिन मैं यहाँ बात करूंगा कि थोड़ी सी आगे उसके आगे बात करूंगा कि सुकुमार सेन साहब जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, उस समय से जो है इंस्टीट्यूशन ने नई नई हाइट्स पकड़ी हैं। जो सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2013 का जो केस है, उसके अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साइड किया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इस तरह से चीज़ें नहीं हो सकती कि आपने हमें बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट बोल देगा और अचानक से वो कर देगा। और अपेक्स कोर्ट में उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो पीपल्स एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, देखिए उसको, आरपीए 1951 का आखिर रोल क्या है, उस वो कोई कंस्ट्रेंट नहीं डालता है पॉलिटिकल पार्टीज की पावर के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो ये भी कह दिया था कि हमारे पास कोई पावर ही नहीं है डी रजिस्टर करने का पॉलिटिकल पार्टीज को जो फ्री भी देती हैं, कि उन्होंने फ्री भी बोल दिया और हमारे डी रजिस्टर कर दें, बिकॉज द फैक्ट दैट एनी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी देने की बात कर रही है, वो जब भी पावर में आएगी तभी तो दे पाएगी, उससे पहले तो वो सिर्फ फिल्म ही है। तो मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रेमिफिकेशन ऑफ प्रोमिसेस वो तो कंफ्यूजन कर देगा, इसीलिए एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो है, अगर मैं क्रिटिकल एंगल से बोलूं, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उसके फाइनेंसेस भी पास है, पर्सनल अपॉइंटमेंट भी उसके पास है, दैट इज वाई अपॉइंटिंग अथॉरिटी का एक मैलिशियस या फिर एक बायस नेचर दिखाई दे सकता है। फॉर एग्जांपल गुजरात इलेक्शंस के शेड्यूल को चेंज किया गया था, अपोजिशन पार्टीज ने बहुत बोला था कि ईसीआई इज डूइंग रॉन्ग, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी अगर ऐसी कोई बात की जाएगी, या फिर जो है कोई ना कोई जो डेट्स इस हिसाब से दी जाए दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फाइंडिंग इट कंड्यूसिव टू इट्स ओन बेनिफिट, तो फिर एवरीबडी इज गोइंग टू से सो, और वो असल में अगर ऐसा है भी नहीं, देन द परसेप्शन मैटर्स। सो द परसेप्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दैट द ईसीआई इज एक्चुअली वर्किंग फॉर द बेनिफिट इन द फेवर ऑफ अदर who is in the power, then it is also in the longer run going to cast a doubt on its integrity and सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो आपको ये समझना है, और बड़े बड़े वर्ड्स आप यूज कीजिए 5-7 एथिक्स के हिसाब से, और आप इस बात को खत्म कीजिए अपार्ट फ्रॉम लुकिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया सुप्रीम कोर्ट का आखिर और इलेक्शन कमीशन का आखिर रोल क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आखिर बोला क्या गया था। आई एम हियर टॉकिंग अबाउट वॉर का सीजन है, वॉर चल रहा है यूक्रेन में, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कपल ऑफ कोट्स ओनली। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कोट वाज गिवन बाय क्लॉज वॉन क्लाउज़विश, ऑसम, अ वेरी वेरी फेमस पर्सनैलिटी। ही गिव द क्लॉज, वॉर इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, ऐसे आ जाएगा, सीधी बात है।
वॉर इज पॉलिटिक्स बाई अदर मीन्स, तो आप इस पर सोचिए कि ये बात सही है कि नहीं है। और दूसरे क्वेश्चन मैं जो उठाना चाहता हूँ, मैं यहाँ वो उठाना चाहता हूँ कि इफ़ यू से दैट एनी कंट्री इज वन टेरिटोरियली, लेकिन अगर उसके पास सी भी है, तो जब तक आप सी से उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक टेरिटोरियल कंट्रोल उसका लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर का यहाँ पे एग्जांपल लें तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है जर्मन्स जो है दे ओवररेन फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटिश आर्मी 40 दिन से पहले उसको ओवररेन कर दिया था, एंडिंग विद द ब्रिटिश इवैक्यूएशन ऑफ डनकिर्क। अमेजिंग अमेजिंग फिनोमेना, अमेजिंग बैटल। उसी के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है जर्मन्स और एलाइज जो है उन्होंने इनकंक्लूसिव वॉर फॉट किया था 4 साल तक। और इशू कब हुआ? इशू जब फाइनली जब सेटल हुआ, जब जब इकोनॉमिक और सिविक अपहेवल जर्मन सोसाइटी में हो गए थे। और आप जानते ही हैं फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। सो आर्मिस्टिस जिसको हम कहते हैं, आर्मिस्टिस का अर्थ होता है कि डिफीट हो गई है लैंड वॉर में, ग्रेट डैमेज भी हो चुका है सी के अंदर, आर्मिस्टाइस। सो यूक्रेन के वॉर को अगर आप उससे लिंक करेंगे तो आपको लगता नहीं कि कहाँ जा रहा है, खत्म होगा कि भाई नहीं होगा, होगा क्या लास्ट में। ब्लिस्क्रिक की बात की गई थी, ब्लिस्क्रिक की 4 से 5 डेज 7 डेज और एवरीथिंग ओवर, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। इंडिया इससे क्या सीख सकता है? अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर की बात करो आप, क्या इंडिया पाकिस्तान में घुस के ब्लिस्क्रिक करके आ सकता है? क्या हो जाएगा? या फिर वो भी बात पुरानी चल रही है, बिकॉज द काइंड ऑफ सिचुएशन, काइंड ऑफ बैंक्रप्सी, काइंड ऑफ इकोनॉमिक हैरेसमेंट, काइंड ऑफ फ्लड्स पाकिस्तान हैज विटनेस्ड, तो टेररिज्म तो उसके लिए ही नेमेसिस बन गया है। सो इंडिया का ऑफेंसिव कैसा होना चाहिए? फ्रॉम आर ट्रैक, आर ट्रैक यानी कि आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड, आर ट्रैक। और या फिर होना चाहिए वो ट्रैडॉक, यूएस ट्रेनिंग, यूएस आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड, यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग है दोनों, दोनों अपने अपने टाइप की स्ट्रेटेजीज हैं, वॉर स्ट्रेटेजीज हैं वो। तो इसीलिए हाईटेक बैटलफील्ड, हाईटेक बैटलफील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। नॉट ऑल बैटलफील्ड्स आर हाईटेक, लेकिन हाईटेक बैटलफील्ड जो है वो जो है ओवरवेलमिंग मैन पावर को कम कर देती है, और वो डोमेन भी मिल जाती है मिलिट्री एक्सपर्ट्स के, उससे पहले ही चीजों को बदल सकती है। इकोनॉमिक्स और डिप्लोमेसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। दैट इज वाई किसिंगर सेट डिप्लोमेसी इज रिस्ट्रेंट ऑन पावर, डिप्लोमेसी इज ए रिस्ट्रेंट ऑन पावर। लिखना चाहिए आपको अपने आंसर्स में ऐसा कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। सो इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी, फोर्स, सारी चीजें मिक्स होकर सोसाइटी चलती है, सारी चीजें मिक्स होकर नेशन चलते हैं। दैट इज वाई जियो इकोनॉमिक आइडियाज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जियो इकोनॉमिक यानी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का तालमेल हो जाता है। डायनेमिक डिप्लोमेसी एक वर्ड यहाँ पर है, तो मोदी जैसे आजकल क्या यूज कर रहे हैं? डायनेमिक डिप्लोमेसी यूज कर रहे हैं। तो इंडिया को भी ऐसा सोचना पड़ेगा, इफ इंडिया वांट्स टू रियली वन ओवर its enemies in a smart way, not by the way conventional things like the way we think। हमें अपने टाइम से आगे रहना ही पड़ेगा। वी हैव नो अदर वे टू मूव एंड टू गेट सक्सेस। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज एनी एरोनॉक्स, प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है। शी हैज गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, फर्स्ट फ्रेंच, फ्रेंच वुमेन जिनको, फ्रेंच राइटर जिनको ये नोबेल प्राइज मिला। एंड शी इज राइटिंग हर मेमोइर्स ऑन पर्सनल, पॉलिटिकल एंड द यूनिवर्सल आइडियाज, यानी क्लास, जेंडर और वुमेन स्ट्रगल्स, शेम्स, ट्रायम्स, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को भी साथ में लिखा है। इसके मतलब इसके लिए हम कह सकते हैं। तो लास्ट ईयर के जो नोबेल पीस प्राइज विनर थे वो थे तंजानियन नॉवलिस्ट अब्दुल रज़ाक गुरनाह। कल हम देखेंगे कि इस बार के जो नोबेल प्राइज विनर हैं पीस प्राइज वो कौन होंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फिजियोलॉजी, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट केमिस्ट्री एंड अदर एरियाज इंक्लूडिंग मेडिसिन। सेबी ने ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी को 6 महीने में अपनी दुकान बंद करने को कहा है, बिकॉज इट हैज बीन नॉट एबल टू डू द एक्सरसाइज डिलीजेंटली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यानी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसका काम है बाकी क्रेडिट जो देते हैं उनको रेट करना, उसको उसको एक फेयर, ट्रू, अप्रोप्रिएट पिक्चर देनी चाहिए, रेटिंग भी एक्यूरेट देनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इंडिया में क्रेडिट रेटिंग आपने नाम सुना होगा, क्रिसिल, केयर, ये सारी की सारी जो है रेटिंग्स हैं, एक्वाइट रेटिंग रिसर्च, क्रिसिल, केयर एंड देन इंडिया रेटिंग्स, इन्फो मरिक्स रेटिंग। तो ये नाम तो नहीं आ जाएंगे एग्जाम में कभी कभी, लेकिन जनरली आपको पता हो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती क्या है, भाई आरबीआई के अंडर आती है कि नहीं आती, आखिर होता क्या है। सो दिस इज हाउ इट हैज नॉट बीन गिवन, it has given only 6 months कि 6 महीने में आप वाइंड अप करो, बिकॉज यू हैव नॉट बीन एबल टू कैरी आउट योर ड्यूटी प्रॉपरली। अब
पीटी के लिए अगर मैं आपको बोलूं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, अब इसके अंदर इतने सारे एरिया आते हैं, पहले आपको बिना देखे सोचना चाहिए कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में कौन कौन से सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं। फिर अचानक से आप सोचते हो एटॉमिक पावर, तो फिर आप ढूंढो भाई एटॉमिक पावर है क्या, नहीं है। तो वो दैट इज द बेटर वे ऑफ लर्निंग रादर देन मगिंग अप रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवेज, वेयर हाउसिंग। इसकी वजह आप सोचो कि बच क्या गया है, और जो बच गया है और वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं है। इंटरनल ऑम्बुड्समैन इज टू बी देयर, आरबीआई बोल रही है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, इट इज सेइंग कि भाई यू मस्ट हैव एन इंटरनल ऑम्बुड्समैन, यानी आपको अपनी जो कंप्लेन्स हैं उनको हैंडल करने के लिए एक इंटरनल ऑम्बुड्समैन अगले साल अप्रैल 1 तक आपको एफिशिएंसी लाने के लिए आपकी ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म में आपको लाना पड़ेगा, इसके लिए आपको छोड़ा नहीं जाएगा। देन अनदर वन ऑफ द एग्जांपल्स आई वांट टू गिव यू, एक डायरेक्टली न्यूज आइटम नहीं है, पीटी में नहीं आएगा, मेंस में नहीं आएगा, लेकिन आई वांट टू शेयर विद यू कि जो फॉर्मर टेलीकॉम सेक्रेटरी जीएस दीपक साहब थे, वो अभी भारतीय एयरटेल ग्रुप के ग्रुप डायरेक्टर बन गए हैं पॉलिसी और इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में। ये 1982 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, उसके बाद टेलीकॉम सेक्रेटरी थे 2016 तक। 2016 में टिल मार्च 2017 उनको एब्रप्टली ट्रांसफर कर दिया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। जिस टाइम उनका ट्रांसफर आया था, एट दैट टाइम ही वाज अटेंडिंग द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में, टेलीकॉम सेक्रेटरी की हैसियत से वो वहाँ पे ज्वाइन कर रहे थे जब उनके ट्रांसफर ऑर्डर्स आए थे। दूसरा, उनके ट्रांसफर होने से 1 वीक पहले ही टेलीकॉम कमीशन, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का, टेलीकॉम कमीशन ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा था कि भाई आपने जो रिलायंस जियो को जो प्रमोशनल ऑफर कंटिन्यू करने का मौका दिया है 90 दिन से ज़्यादा भी, उससे भारत सरकार को 685 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो दोनों बातें जुड़ी नहीं हुई हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू कि कैसे उनका एब्रप्टली ट्रांसफर कर दिया गया था, वो भी ठीक है, लेकिन कैसे उन्होंने लेटर भी लिखा था एज द हाईएस्ट अथॉरिटी, एज सेक्रेटरी टेलीकॉम, as chairman of telecom commission to the TRA, that is telecom regulatory authority of India। वो भी देख लीजिए आपकी उसका रोल क्या है। तो TRAI को लेटर लिखा, TRAI के जो शर्मा साहब थे उस टाइम वो हेड थे उसके, और टेलीकॉम TRAI ने जियो को मौका दिया कि भाई 90 दिन से ज़्यादा भी तू प्रमोशन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वही आप सोचिए, उस टाइम कॉम्पिटिटर कौन है, कॉम्पिटिटर एयरटेल है। तो आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हो कि दीपक साहब ने जो लेटर लिखा, क्या वो एयरटेल के बिहाफ पे लिखा या उनको इन्फ्लुएंस होकर लिखा। आज वो एयरटेल को ज्वाइन भी कर रहा है, लेकिन उन्होंने मैंडेटरी कूलिंग पीरियड को पास कर लिया है। बाद में ही वॉज अपॉइंटेड एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और बाद में जो है ही वॉज अपॉइंटेड एज एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ही वॉज अपॉइंटेड एज परमानेंट एम्बेसडर ऑफ इंडिया एट द WTO इन जिनेवा, जो उनका 2020 में खत्म हुआ है, 19 मई 2020 में। 2018 में ही सुपरनेटेड हिज जॉब, सुपरनेशन हो गया उनका, खत्म हो गई। देन बाय मई 2020 ही वाज till May 2020 he continued as permanent ambassador of India at WTO. And secondly, by after clearance from the government and after mandatory cooling period, now he is being appointed as Bharti Airtel Group Director। तो देखिए कितना गजब, कितना डायनामिक, कितना वर्सेटाइल वर्क है और कितना अमेजिंग भी है अपने आप में। So these are couple of the important news items that we have covered, and we want to move forward with the next news item, as we have been discussing many key areas so that we can handle the all important developments. One very important news item that I want to share with you here is that we must have more number of, you know, more number of women officers, more number of women directors. That is very, very important in terms of leadership gender balance in NSE 200 companies. That is very, very important। तो उसके लिए सेबी ने बहुत सारे steps लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्लिगेशंस, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस 2018, उसमें प्रोविजन डाला एक वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए लिस्टेड कंपनी में। That has been under the Companies Act 2013. Top 500 companies were mandated by SEBI to have at least one woman independent director by 2019. Top 1000 companies by 2020.
तो ऐसे करके सेबी इज प्रमोटिंग दिस आइडिया. Top 30 public sector units of PSUs, 9 were without women independent director on board. Or even though Nifty 50 companies, both PSUs, with one of them having as many as 13 men its board, none had women independent director. So non-complying with the regulatory mandate नहीं होना चाहिए. Role of independent director is protecting the rights of minority shareholders. इसीलिए वो unbiased होता है, जेंडर सेंसिटिव पर्सपेक्टिव भी लेके आता है, और साथ साथ में वो जो है इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाता है. दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको कंप्लायंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 3 वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होल्ड 7 बोर्ड पोजीशन इन द लिस्टेड कंपनीज, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिटेड अंडर द एलओडीआर, जो अभी मैंने आपको बताया. तो क्वेश्चन यही उठता है कि ये अगर आप एक आध एग्जांपल देते हैं, या आप सोसाइटी के आंसर में लेके आते हैं, या वुमेन एट वर्क के क्वेश्चन में लेके आते हैं, या आप एथिक्स और एसए में लेके आते हैं, देन देयर इज अ चांस यू मे स्कोर मोर मार्क्स बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग ए मंडेन एंड एवरीडे इन्फॉर्मेशन. क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के मामले में भी आप देखिए, वुमेन आर नो लेस देन एनीवन, बट लेकिन मौका उनको पूरा मिलना चाहिए. सो वुमेन के केस में जनरली कंपनी का कहना है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल एंड क्वालिफाइड वुमेन, लेकिन ये फालतू की बात है, ये तो फालतू की बात है. तो what is there? There must be willpower to do so. There must be, political, economic, social, cultural idea. There is a vast army of educated Indian women. क्या पूरे इंडिया में there are not around 600 women who are qualified to work as independent directors? There are many. So Indian companies need credibility and impeccable record. Indian companies need to work in such a manner where regulatory framework is really going to help them. That is why it is going to percolate down. PSUs हों, चाहे लिस्टेड कंपनीज हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, एवरीवेयर इंक्लूडिंग निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 इंडेक्स कॉम्पोजिशन, वो भी हर 6 महीने में रिवाइज होते हैं. So that is why this is a very very important issue, but a negligent issue that we have picked up, so that we can understand and we can carry on with the understanding and the key idea that is required. Continuing further, one of the most important development that has taken place recently is 4 cough syrups which have been in the news because of horrified and you can say very very sad killings of children, 66 children in Gambia. First I would say please check कि Gambia की लोकेशन क्या है. ये 4 मेडिकेशंस जो कफ सिरप बच्चों को कैसे किल कर सकता है, क्योंकि ग्लिसरीन अगर यूज की जाएगी कफ सिरप में, अगर ग्लिसरीन एक की इंग्रेडिएंट है कफ सिरप में, अगर वो यूज किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर उसे रिप्लेस कर देंगे आप टॉक्सिक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जैसे डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, DEG पीटी के लिए है, और या फिर साथ में आप उसे कर दोगे इथाइलिन ग्लाइकोल EG, तो कफ सिरप टॉक्सिक बन जाता है. DEG और EG चीप होते हैं, इलीगली भी यूज होते हैं वो, और वो अगर हाई डोज में कंज्यूम करने जाए तो वो जो है आपके किडनी फेलियर में रिजल्ट करते हैं. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग yes, it is looking into the matter, or further course of action it is going to see. तो क्वेश्चन इज अबाउट, जैसे मैंने आपसे कहा, डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल. ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट हैव कॉज डेथ्स, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, क्योंकि दोनों ही कलरलेस लिक्विड हैं. डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल दोनों ही स्वीटिश हैं टेस्ट में, दोनों का यूज पेंट में होता है, और वो मास पॉइजनिंग में इन्वॉल्व हैं एज अर्ली एज सिंस 1937. तो कंटेमिनेंट्स होते हैं और स्वीटनर के तौर पे यूज कर सकते हैं. एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग होगा, ब्लड डिसफंक्शन होगा, साथ में जो है मेंटल स्टेट पे आपके इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक्यूट किडनी डिजीज भी हो सकती है. तो इन चीज़ों की वजह से आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और ये दिस हैज़ टू बी handled in a very very smart manner. Like as I told you that this is a very very serious issue. तो अगर आप देखेंगे यूएस, हैती, इंडिया, मुंबई, गुड़गांव, जम्मू एंड कश्मीर, पनामा, नाइजीरिया, देन अगेन इन नाइजीरिया एंड देन अगेन इन बांग्लादेश, डाइथाइलिन और जो है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल ये पेंटिंग पे यूज होते हैं. साथ साथ में जैसा मैंने कहा, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज ब्रेक फ्लूइड्स. ये जो है बहुत ही खतरनाक है, कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं, और रॉ मटेरियल में आप कह लीजिए अगर कोई गड़बड़ होगी, धंधेबाजी होगी, देन दीज थिंग्स आर देयर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ, दे आर नॉट पार्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसिंग कोड, उनको ब्रीच करके ही हो सकता है. सो
तो ड्रग रेगुलेशन जो इंडिया में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किताब आ रही है द ट्रूथ पिल, आप इसका जिक्र कर सकते हैं। इट टॉक्स अबाउट द फार्मास्यूटिकल ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन। सो ड्रग रेगुलेशन के बिना तो आप जान लीजिए हर जान को खतरा है। इट इज गैम्बिया टुडे, टुमारो इट कैन बी इंडिया ऑल्सो। दैट इज वाई जो ड्रग रेगुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए मुझे, स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। यू नो, good manufacturing practices, WHO framework, it must be used under all conditions. So this is what lesson we can learn from here, so that no problem goes without detection. अगर मैं बात करूं नॉर्थ कोरिया की और साउथ कोरिया की, तो ये देखिए टेंशन कोरियन पेनिनसुला मैं आपको दिखा रहा हूं। दिस इज टोक्यो जापान, आई बीन टू टोक्यो बाय द वे, टोक्यो जापान, एंड दिस इज होकाइडो। सो ये हो गया आपका नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग, और ये हो गया आपका साउथ कोरिया, सिया, येलो सी, एंड दैट इज व्हाट इज इन द न्यूज, बिकॉज नॉर्थ कोरिया फ्लाइज वॉरप्लेन्स एंड फायर्स मिसाइल आफ्टर ड्रिल। तो ड्रिल किसने की? साउथ कोरिया एंड जापान एंड यूएस, उन्होंने मिलके साउथ कोरिया उन्होंने मिलके किया। तो इंडिया हैज स्ट्रांगली कंडम्ड, इंडिया हैज स्ट्रांगली कंडम्ड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, एक और अगर मैं पीटी फैक्ट आपको बोलूं तो आईएसकेपी स्टेट खोरासान प्रोविंस, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस। तो देखिए खोरासान प्रोविंस है का एक्चुअल में, पीटी में ऑलरेडी एक बार आ भी चुका है ये। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान टेरिटरी का पार्ट है आईएसकेपी। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान सेंट्रिक चैप्टर जो इस्लामिक स्टेट का है वो इंडिया के लिए थ्रेट है, इंडिया के लिए रीजनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। वो कभी गुरुद्वारों पर अटैक करता है, कभी वो जो है इनोसेंट सिटीजन्स के ऊपर अटैक करता है। तो आईएसकेपी हैज बीन अ वेरी वेरी एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ फॉर क्रिएटिंग डीस्टेबिलिटी एज फार एज इंडिया इज concerned. So this is two very important items which I wanted to share with you as far as this newspaper is concerned. Going further, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको अपने पॉइंट्स बनाने हैं और आपको रिवाइज करना है। डू विजिट वीडियो अगेन अगेन, प्लीज डू लुक एट द पीडीएफ ऑल्सो विच इज अटैच विद द video which is going to help you in revision and also in making your own notes. I can assure you understanding will help you in solving questions for sure. Okay, the one is that ऑयल प्राइसेस का फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आप ये देखेंगे तो WTO का फोरकास्ट भी है दैट मर्केंटाइज ट्रेड वॉल्यूम विल स्लो डाउन, ग्रो एट 1%, लेस देन 3.4% जो पहले फोरकास्ट किया था। एनर्जी शॉक जो है, पहले तो सेल्फ डिफीटिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है लगाई गई हैं यूएस ने और यूरोप ने रशिया के ऊपर। उसके बाद यूरोप हैज गॉट द बिगेस्ट हिट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट। ईरान और वेनेजुएला दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, लेकिन वो भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स के सामने डुअल चैलेंज है। पहली बात तो सप्लाई प्रेशर का है जिससे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, एट द सेम टाइम ग्लोबल स्लो डाउन है। दूसरा, मंथली एवरेज प्राइस ऑफ इंडियन बास्केट क्रूड जो है वो पीक पे चला गया था जून में, बाकी डिक्लाइन हो गया। पंप प्राइसेस ऑफ पेट्रोल डीजल अनचेंज हैं। और एक और मैं आपको यहाँ फार्मूला बताता हूँ, रिंग फेंसिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी फ्रॉम द ग्लोबल प्राइस मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेन चैलेंज क्या है? मेन चैलेंज इज द रिलेटिव स्लो डाउन, यानी परचेजिंग मैनेजर सर्वे ने बताया कि सर्विसेज और स्लो डाउन की तरफ जाएंगे, तो हमारी फिजिकल पॉलिसीज उसको अडेप्ट करने के लिए तैयार रहनी चाहिए। वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को टफ टाइम्स को स्मार्टली हैंडल करना ही होगा, बिकॉज देयर इज नो वे अहेड टू रन अवे फ्रॉम इट। और इंडिया हैज मैनेज्ड इट, कोविड का इतना अच्छा मैनेजमेंट हुआ, then after that RBI has also taken the right stand, so definitely we are on the right path as far as that is concerned. Coming to the Hindu newspaper, let's again take up some key elements. सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ आर्ट एंड कल्चर का जो आया है। तो टक्कू शास्त्रा, जिसे हम कहते हैं टकवा शास्त्रा आप कह लीजिए, पद्मनाभपुरम पैलेस है कन्याकुमारी में, वो ट्रेडिशनल टिम्बर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, हेरिटेज स्ट्रक्चर है वो। और वो जो है यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार इट इज एन एक्सेप्शन एग्जाम्पल ऑफ इंडिजिनस बिल्डिंग, यही है आपका कन्याकुमारी में। तो मैंने जैसा कहा टक्कू शास्त्रा, साइंस ऑफ कारपेंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मनाभपुरम एंड उदयगिरी फोर्ट, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ कन्याकुमारी। सो ये बहुत समय से केरला के कंट्रोल में रहा। और पाम लीफ रिकॉर्ड्स उस समय के जो है आर्काइव्स में मिलते हैं, और वो कहते हैं कि किस तरीके से उसको बनाया गया था। लोगों ने जो है फनम
यानी कि सेस दिया था, फनम इज अ काइंड ऑफ करेंसी, और एवरी मा यानी एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो श्री वीर रवि वर्मा हु रूल्ड बिटवीन 1592 टू 1609, ये उस टाइम से हुआ था। बाद में जो है मार्तंड वर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ ट्रेवेनकोर, मार्तंड वर्मा गूगल कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने जो है इसको और आगे इसको एक्सप्लोर और इसको जो है हायर हाइट्स पे लेके गए। डच ट्रेवलर, दैट मीन्स उस टाइम डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी, देन इट इज टॉकिंग अबाउट दिस फोर्टिफाइड टाउन एंड इट इज राइटिंग अबाउट इट। तो मतलब कि इट कैन बी पॉसिबल दैट इट कैन बी पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को ने 2014 में रिपोर्ट किया था, बिकॉज ये ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है, एक्सक्यूजिट क्राफ्टमैनशिप है, सुपीरियर नॉलेज ऑफ मटेरियल साइंस है। तो यूनेस्को कहती है कि ओल्डेस्ट लार्जेस्ट एंड वेल प्रिजर्व सर्वाइविंग एग्जांपल्स है। तो अगर हम उसका बना के देंगे डॉसियर, तो हो सकता है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के उसमें भी जगह मिले। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेंटिंग्स हैं, उसके बाद म्यूरल्स हैं। म्यूरल का मतलब होता है दीवार के ऊपर बहुत बड़ी पेंटिंग, उसको हम म्यूरल कहते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कैन से ओवर हियर। मूविंग फर्दर, डोमेस्टिक आइडियोलॉजीज इन एक्सटर्नल सेटिंग्स। तो क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि यदि आप नेशनल सेटिंग में आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर आप या फिर किसी और बात के लिए कोई बात करते हैं, तो उसका एक्सटर्नल सेटिंग्स में क्या प्रभाव पड़ता है। यदि मैं इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हूँ अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, और अगर मैं बात करता हूँ कि भारत में अभी कॉलोनियल मेंटेलिटी खत्म हो रही है, तो आप उसको कैसे देखेंगे एट द यूनाइटेड नेशंस फोरम, कि वो बात सही है कि गलत है। तो विवेक कात्सू सर का कहना है कि अगर मैं अपने बारे में, मैं एज एन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इफ आई एम सेइंग दिस इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो कायदे से मैं देश के लिए डिससर्विस कर रहा हूँ। भारत था जिसने डीकोलोनाइज मूवमेंट्स को सपोर्ट किया इन अफ्रीका, भारत था जिसने अपार्थाइड रेजिम के अगेंस्ट बात की, भारत था जिसने नया मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो भारत कहाँ रह गया? फिर आज का भारत ये अगर बात करेगा तो फिर उस भारत ने क्या किया? देन उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि सेंचुरीज ऑफ फॉरेन इन्वेशन, अगर ये बात आप यूनाइटेड नेशन में जाके बोलते हो, तो ये हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द मल्टीलेटरल सेटिंग, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अबाउट द फैक्ट दैट कि हमने अपने आप को प्लूरल नेशन के तौर पे, प्रोग्रेसिव नेशन के तौर पे हमने अपने आप को कैसे कंडक्ट किया। तो ये इसलिए आर्टिकल कहना क्या चाहता है, डोमेस्टिक आइडियोलॉजीज इन एक्सटर्नल सेटिंग्स। तो एक्सटर्नल सेटिंग यानी कि वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे इन चीजों का क्या फायदा होगा। सो दिस इज व्हाट अ कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल अप्रोच, इसको कहते हैं क्रिटिकल अप्रोच। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है, दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन फ्रॉम द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट आवर ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वाज स्पीकिंग इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इसमें जो लिखा है वो आंसर में ना चाहिए, थोड़ा बहुत गांधी जी की बात कर सकते हो, नेहरू जी की, लेकिन जो इसमें लिखा गया वो क्रिटिकल जरूर है। तो ये समझाने के लिए ही मैंने आपको ये आर्टिकल बताया। दूसरा, सीएसआर फ्रेमवर्क, अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर कॉर्पोरेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 की, उसकी स्पेंडिंग होनी चाहिए। स्पेंडिंग अगर होंगी तो वो अपने जितना उनका प्रॉफिट है, जितना उनका जो कहना चाहिए प्रॉफिट बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा सीएसआर स्पेंडिंग बढ़ेगी। दिस इज व्हाट इज द की पॉइंट। तो डिक्लाइन भी हुआ है बहुत सारी कंपनीज का। कोई कंपनी ने जो है एक्सेस में भी किया है 2% के, क्योंकि एक्सेस अमाउंट अगर आप करेंगे भी तो सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर वो बराबर हो जाएगी। सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि कैसे जोग्राफिकल बायस है उसमें भी, क्योंकि अशोका यूनिवर्सिटी ने एक जब थिंक टैंक की तरह काम किया और उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलंथ्रपी, वो कहते हैं कि 54% सीएसआर कंपनी जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात में है। जबकि मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उनको बहुत लिटिल पैसा दिया जाता है। तो यानी कि लोकल एरिया जो एक्ट में लिखा गया है वो डिस्क्रिशनरी है, अब बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये बात कर रहे हैं कि एक्ट में क्या क्या और चेंजेस हो सकते हैं, कि ब्रॉडर इन्वायरमेंटल इश्यूज जो टैकल होते हैं उसके अंदर सीएसआर स्पेंडिंग जुड़नी चाहिए। जैसे सीएसआर स्पेंडिंग एजुकेशन में 37% है, हेल्थ में एंड सैनिटेशन में 29% है, सिर्फ 9% सिर्फ जो है एनवायरमेंट के ऊपर है। जबकि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव यानी जैसे मिनरल माइनिंग, इन सब में जो है वो भी डिट्रीमेंटल है ना एनवायरमेंट के लिए, लेकिन फिर भी वो पैसा नहीं लगा रही है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को चाहिए कि वो एनुअल रिपोर्ट जब फाइल होती है उसको और डिलीजेंट बनाए। तो मेजर इशू है कि आउटपुट को और फोकस्ड बेस कैसे बनाया जाए। सीएसआर स्पेंडिंग जो है कंपनी की सफिशिएंट होनी चाहिए और वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, बल्कि उनकी वेबसाइट पे ही होनी चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया का भी यही कहना है
कि सीएसआर स्पेंड सिर्फ मत बताइए, स्पेंड, अंडर स्पेंड, ओवर स्पेंड, अरे आप एग्जैक्टली बताइए कि किया क्या। ऑथेंटिसिटी को उसकी लेके आइए, एक नेशनल लेवल की करेक्ट पिक्चर लेके आइए, सीएसआर फंड का इम्पैक्ट दिखाइए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स रिपोजिटरी बना देनी चाहिए। इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड जो है उसके ऊपर, इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड एक मॉडल हो गया अपने आप में। ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने, संसद आदर्श ग्राम योजना, पीटी में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जो भी मैं आपको फ्रेजेस और कीवर्ड्स बोल रहा हूँ उनको गूगल करो, उनकी लिस्ट बनाओ और उसके बाद उनमें से अपने पॉइंट्स बनाओ। तो सारे सीएसआर प्रोजेक्ट छांटे जाने चाहिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए। ऐसा लेकिन हो नहीं पाता है। और सीएसआईआर को हम अगर मैंडेटरी स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर लेके आ जाएंगे तब भी हमारा फायदा होगा। तो गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज बिगन टू सेपरेट स्कीम्स उन्होंने निकाली, सैनिटेशन की, वाटर सप्लाई की, एजुकेशन की, और वो जो है चाहती है कि फ्रॉड और डुप्लीकेशन को भी बंद कर दें। तो इसीलिए सीएसआर, नॉन स्पेंडिंग, अंडर स्पेंडिंग, ये सारी चीज़ों को हमें एक क्रिटिकल एंगल से देखना होगा। तभी हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना पाएंगे और तभी सीएसआर का एक इम्पैक्टफुल आइडिया हो पाएगा। ये जनरल स्टडीज पेपर 3 और पेपर 2 के कुछ एलिमेंट्स को इजीली कवर करता है अगर आप सिलेबस को चेक करते हैं तो। चाहे फिर वो बात हो डेवलपमेंट की, चाहे फिर वो बात हो कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स की, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप एक लाइन लेके आ सकते हैं। नाउ गोइंग विद द नेक्स्ट आइडिया, इलेक्शन कमीशन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 2013 की जजमेंट की भी हम बात कर चुके हैं, तो सेम आइडियाज आर रिपीटेड हियर, सो वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट इट, and rest of the topics also we have covered in a sufficient manner. So that is why very few new ideas are remaining here which we can pick up. फ्राइडे रिव्यू मुझे देखकर याद आया कि हमारी एक सीरीज है फ्राइडे रिव्यू की, प्लीज डू चेकआउट। वहां पर आपको पीटी के आर्ट एंड कल्चर के कुछ फैक्ट्स भी मिलेंगे, बाकी सीरीज भी हैं, वो आप अपने कन्वीनियंस और अपने माइंडसेट से आप चेक कर सकते हैं। दे आर ऑल रिलेवेंट टू द एग्जामिनेशन विच यू विल फाइंड वंस यू लुक थ्रू देम। अब हम बात करते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी या इंडियन थिंकिंग में जो समय के साथ जो परिवर्तन हो, जैसे इंडिया आपने आपको नैम बोला 1950 में, उसके बाद से लीडिंग प्लेयर बना नैम का। नैम जो है वो कहते हैं कि इंडिया को उसने ग्रेट पावर की राइवलरी में नहीं घुसने दिया, लेकिन अब जो है जैसे यूएस, चाइना, पाकिस्तान, वो अगर इकट्ठे हो जाए मान लीजिए, और वो सोवियत यूनियन को बांग्लादेश, सोवियत यूनियन जो है बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पे जब इंडिया ने ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन साइन किया, तब हमारा कहा गया कि भाई हम नैम नहीं है हम तो, क्योंकि हमने रशिया के साथ बांग्लादेश क्रिएट करने के लिए यूएस, चाइना और पाकिस्तान की ग्रुपिंग के अगेंस्ट वर्क किया। तो इसीलिए बांग्लादेश तो बना और इंडिया और सोवियत यूनियन भी इकट्ठे हो गए। तो डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का 1990s को, फिर नई ग्रुपिंग और नए अलायंसेस बने। तो नैम हम आई थिंक हमने बहुत ही क्रिटिकली और बहुत ही नेशनल मूवमेंट के हिसाब से और अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फॉलो किया है। इसमें कोई सोचने या इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, मतलब इन द सेंस हम ये बात सोचने की नहीं है, ये ऑब्वियसली हमने ऐसा किया है। इसीलिए चाइना के बहुत सारे नेबर्स, दे आर अफ्रेड ऑफ डूइंग एनीथिंग विच चाइना मे नॉट लाइक। Russia obviously is doing everything because of because by the American hostility with what China, American hostility and America is wary of China. लेकिन इस टाइम पे इंडिया ने तो अपने सारे के सारे जो डायलॉग चैनल्स है वो ओपन रखे हैं ना, इसीलिए इंडिया किसका पार्ट बना, इंडिया बना क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का पार्ट, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस। सिमिलरली जब जब ऐसा हुआ है किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, इट इट स्टॉप डिस्कशंस व्हेन इट वाज लेड बाय साइनो, यानी चाइना सेंट्रिक, जब उसके प्राइम मिनिस्टर थे केविन रूड, तो कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो है तब थोड़ी सी डाउन हो गई, लेकिन उसके बाद फिर से उठ गई। और नरेंद्र मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी सर ने पुराने आइडियाज को आगे लेके गए। तो क्वाड ने मैरीटाइम, मिलिट्री कॉपरेशन, इंडियन ओशियन एंड एशिया पैसिफिक आइडियाज, इन सबको उन्होंने प्रमोट किया है और एक प्रपोजल बनाया टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ कोविड वैक्सीन के लिए भी बात की। जैसे कि यू नो पहले जब इंडिया चाहता था टाइम से वैक्सीन को करे, लेकिन इंडिया हैज बीन द हब ऑफ कोविड वैक्सीन एंड अदर वैक्सीन ऑल्सो। ऐसे ही एफटीए विद ताइवान, आसियान। एफटीए
आसियान में होने के बावजूद हमने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया। उसके अंदर 15 ईस्ट एशियन और पैसिफिक नेशंस हैं। क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आसियान के नाम के ऊपर हमारे यहाँ चीप और हमारे यहाँ जो है बहुत सारे गुड डंप कर दिए जाएं, रूल ऑफ ओरिजिन ही ब्रेक हो जाए। पता चला ओरिजिन हो रहा है न्यूजीलैंड में और भाई नाम लिया जा रहा है किसी आसियान कंट्री का और हमारे यहाँ डंप हो गया। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसलिए जैसे यूएस और ईयू के साथ हम अभी ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहे हैं, चाइनीज ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से हमें अराउंड 72 बिलियन डॉलर का हमारा डेफिसिट है। इंडिया ने अभी ज्वाइन किया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, लेकिन यूनिलेटरली नहीं किया, किसी एक पावर के अगेंस्ट और किसी एक पावर के फेवर में नहीं किया है। यूएस जो है क्वाड का मेंबर भी है और यूएस जो है इनडायरेक्टली आसियान से भी जुड़ा हुआ है। तो इंडिया का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो कोशिश ये करती है कि हॉलिस्टिकली और इंटीग्रेटेड मैनर में इंडिया जो है साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करे, ताकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी ग्रो करें। तो एससीओ भी उसका एक चैनल देता है लुक ईस्ट पॉलिसीज का, क्लोजर इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद द वेस्टर्न नेबरहुड थ्रू ईरान। अगर आप ईस्ट की बात करेंगे इधर तो वेस्ट की बात करेंगे तो आप उधर। तो वेस्टर्न नेबरहुड में ईरान के थ्रू हो सकता है। ईरान क्या यूज कर सकता है? चाहबार पोर्ट। ऑब्वियसली इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। चाहबार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलायबल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इंडिया ट्रेड एंड कॉमर्स कॉपरेशन विद इंटायर सेंट्रल एशिया। आप देखो उसमें रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए मोदी जी, जब मोदी सर मिले ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से, तो ऑयल परचेज की बात हुई। अब आपको पता ही है उस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है कि वो ईरान के ऊपर जो न्यूक्लियर सैंक्शंस है उनको एंड करे, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से कोई भी ईरान और यूएस के बीच में कोई भी समझौता नहीं हो पाया है। सेंट्रल एशिया वो भी डिवाइड होने लगा है, यानी मुस्लिम डोमिनेटेड अजरबैजान, उसका क्रिश्चियन डोमिनेटेड नेबर आर्मीनिया। अजरबैजान और आर्मीनिया में पीटी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका था, जहाँ जहाँ पर यू नो कौन कौन से फ्लैश पॉइंट्स हैं उस सिटीज़ का नाम आ चुका है। रशिया जो है कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है यूक्रेन के साथ। अब इंडिया को चाहिए कि भाई राइट पार्टीज का राइट तरीके से सपोर्ट करे, जैसे इंडिया ने आर्मीनिया का किया। तो डे टू डे जो कंडक्ट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम कर रहा है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी ध्यान दे रहा है। पीएसआईआर का सीधा आंसर बनता है ये, उसका मैंने बैकग्राउंड पूरा समझा दिया। अब फर्स्ट समिट जो हम कहते हैं I2U2, जो पीटी में मेंस में क्वेश्चन आ चुका है इस साल, I2U2 ग्रुपिंग 2022 में एक क्वेश्चन आ चुका है। उसमें इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई, इससे रिलेटेड इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन आ चुका है। I2U2 पे डायरेक्ट नहीं पूछ रहे थे, लेकिन वो पूछ रहे थे अब्राहम अकॉर्ड और आई कांट रिकॉल एग्जैक्टली, बट इन्हीं चीज़ों पर एक क्वेश्चन भी आया। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंडिया और यूएस ने पार्टनर किया है टू वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, वाटर रिसोर्सेज, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन और स्पेस। अगर आपको इतना पता रहे तो क्या बुराई है। पीटी में ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं आने वाला। पीटी में हमेशा ऑफ द बीट क्वेश्चंस आएंगे, आएंगे आसपास से, लेकिन दे ऑल विल बी ऑफ द बीट। इंडिया को ऐसा ही चाहिए, अफ्रीका और वेस्ट एशिया के साथ भी इसी तरह की चीज़ों को बढ़ाए वो। और तभी अगर इंडिया ऐसा करेगा तो इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में भी उभरेगा। जो 10 साल पहले हम नहीं सोच सकते थे वो अब हो रहा है। इंडिया को यूएई की फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, इसराइल की टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, यूएस अभी हमें इन्वॉल्वमेंट सपोर्ट कर रहा है, और हम जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हमारा जो है हम लिंक कर रहे हैं, और साथ में जो है ईरान हो गया, रशिया हो गया, इनसे भी हमारी बात हो रही है। तो यानी जो एक जगह इंटेंगल होने की बात थी, इसीलिए हमारा नया मल्टी इंगेजमेंट हो रहा है, मल्टी अलाइनमेंट हो रहा है, इसलिए टाइज मैटर करते हैं। और इंडिया अपने वेस्टर्न नेबरहुड पर फोकस कर रहा है, ना कि सिर्फ छोटी बातें कर रहा है। तो भारत आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस एंड एट ऑल कॉस्ट्स। दूसरा मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं बहुत छोटी सी, कि फ्यूचर एग्रीकल्चर में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो फ्यूचर एनालिसिस कहता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं बैंड कमोडिटीज के, उनसे प्राइस डिस्कवरी में हेल्प मिलती है। सेंटर ने जो है बैन लगा दिया आधे से ज्यादा डजन एक्टिव एग्रीकल्चर डेरिवेटिव्स के ऊपर दिसंबर 2021 में। कहा जाता है कि उसको रिवोक करना चाहिए। इससे क्या हुआ, कमोडिटी एक्सचेंजेस में नए कॉन्ट्रैक्ट, सस्पेंडेड कमोडिटीज जो था उनका आप नहीं कर सकते। लेकिन कोई एविडेंस ही नहीं है कि क्या रिलेशनशिप है कमोडिटी फ्यूचर, यानी कि उस कमोडिटी जिसको आपने बैन लगाया, और स्पॉट प्राइस वॉलेटिलिटी, यानी उस समय उसका क्या दाम है।
मैं 25 दिन बाद 30 दिन बाद दाम का अंदाजा लगाता हूँ और आज का दाम उसका क्या है। तो ये आर्टिकल जो है ये कहना ये चाहता है कि वॉलेटिलिटी ट्रेंड्स जो स्पॉट और फ्यूचर मार्केट्स में होते हैं, स्पॉट यानी ऑन द स्पॉट, फ्यूचर यानी बाद का, ये कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। फ्यूचर यानी फ्यूचर, स्पॉट यानी स्पॉट, इतना सिंपल आपको देखना है। तो यानी कि कमोडिटी फ्यूचर्स बैन हो गए। डेटा क्या यूज किया गया, एनसीडीएक्स, दैट इज नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव इंडेक्स, फ्यूचर प्राइसेस और स्पॉट प्राइसेस। तो यानी कि पॉइंट ये है कि ऐसा करने से क्या फायदा हुआ। पहली बात तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ चेंज जो स्पॉट और फ्यूचर प्राइसेस में है बैंड कमोडिटीज के लिए, उसे ये देखना पड़ेगा कि क्या प्राइसेस उसके बाद क्या अपने हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न्स पे आ गए या उनका डेविएशन अभी भी है। ये भी तो हो सकता है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बैंड कमोडिटीज पे किया गया है वो इंस्ट्रूमेंटल हो प्राइस डिस्कवरी में और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट में। ये भी एक बात हो सकती है। भाई आपने एक बार कर दिया तो हो सकता है उसकी तरफ से वो चीज़ हटे। दूसरा एफिशिएंसी का फैक्टर है। एफिशिएंसी का फैक्टर है मतलब कि एफिशिएंसी कितनी है फ्यूचर प्राइसेस में, यानी स्पेकुलेशन जितनी कम होगी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। तीसरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो मेजर करता है कि डेटा किस तरह से डिस्पर्स हो रखा है, तो रिस्क कितना लिया गया, रिस्क कम होगा कि ज़्यादा होगा। जैसे सोयाबीन है, चना है, सीड है, मतलब आपने कोई चीज़ के ऊपर इतना लगा दिया, उसकी वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ा दी कि वो रियलिटी से अचानक से दूर हो जाए। तो ये जो प्राइस डिस्कवरी है, रियल प्राइस डिस्कवरी एग्रीकल्चर फ्यूचर प्राइसेस, ये आम किसान और आम फार्मर और कंज्यूमर के भले के लिए किया गया था, ना कि होर्डिंग के लिए, ना कि सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए, ना कि सिर्फ कंज्यूमरिज्म के लिए, ना कि सिर्फ आप कहिए कि कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज के लिए। तो ये वाली बात है। तो ये देखिए आपके सामने है मस्टर्ड, चना, सोयाबीन, सोया ऑयल, स्टैंडर्ड डेविएशन फ्यूचर्स में, स्टैंडर्ड डेविएशन स्पॉट में, फर्क देखिए आप, फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बैन के बाद की बातें हैं, जो बैन होने के बाद है। तो बनाया इसलिए गया था कि भाई फ्यूचर इसलिए है, स्पॉट प्राइसेस इसलिए है कि जो है उससे किसान को अच्छा दाम मिले। लेकिन अगर स्पेकुलेशन होगा, उसको आप स्पेकुलेट करने में ही चले जाओगे, भाई पता नहीं क्या होने वाला है, सब कुछ खराब हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, सप्लाई खराब हो जाएगी, तो नेचुरली फिर उसका जो रियल पर्पस है वो खत्म हो जाएगा। सो रूरल अर्बन लिंक की अगर हम बात करें तो रूरल अर्बन लिंक का सबसे की इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्किल सेट होने चाहिए। रूरल टैलेंट को स्किल मिलना चाहिए। 65% जो रूरल पॉपुलेशन है उसको स्किल मिलना चाहिए, लाइवलीहुड के और अलाइड फैक्टर से उसको बाहर आना चाहिए। नॉन फार्म रूरल सेक्टर, फिर से कीवर्ड बोल रहा हूँ, 4 बार सोचिएगा, नॉन फार्म रूरल सेक्टर, क्या क्या आ सकता है उसके अंदर, सोचो। और वही एग्जाम में चाहिए। एग्रो प्रोसेसिंग चाहिए कि ट्रांसपोर्ट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, रिटेल चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ का एलिमेंट आ गया। ये न्यू सर्विसेज लेड ऑक्यूपेशंस, ये भी एक दूसरा कीवर्ड है, न्यू सर्विसेज लेड ऑक्यूपेशंस। लिखोगे आप न्यू सर्विसेज लेड ऑक्यूपेशन लाइक माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गए, बेकरी हो गया, ऑटोमोबाइल रिपेयर हो गया, ई सर्विस कियोस्क हो गए। तो ये सारे जो हैं हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ड्रॉट और पॉवर्टी को छोड़कर जब आप वाटर कंजर्वेशन, सॉइल क्वालिटी, नेचुरल पेस्टिसाइड में जाओगे तो आप जो है करोड़ों रुपए कमाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक वोकेशनल डिप्लोमा था अरुण जी के पास, उन्होंने इजराइल टेक्नोलॉजी को इंडियनाइज किया, प्लास्टिक मल्चिंग सॉल्यूशन निकाला, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स को आज फायदा मिला है और वो कितने सारे ग्रेजुएट्स को भी उन्होंने काम दिया है। अरुण अरुण अवटाड़े जी फ्रॉम पुणे। कंजर्व वाटर, इंप्रूव सॉइल क्वालिटी एंड प्रिवेंट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। सो कॉन्टेस्ट होते हैं जैसे बिजनेस आइडिया कॉन्टेस्ट, इंटरप्रेन्योरल हैकाथन, मेंटर मोबाइल क्लिनिक, इनमें से कुछ कुछ वर्ड आप याद कीजिए और अपने एग्जाम में आप डालिए। तो भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट के को फाउंडर और वो हैं नेस्कॉम से जुड़े हुए हैं, इन्होंने ये आइडिया दिए। और ऐसा होता है, चीजें होती हैं, करने वाला होना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पर भी एक इनोवेशन ला रहे हैं बाई पुटिंग अप द रेलेवेंट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द रेलेवेंट में। ये लेकिन एक ही स्टेप है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, let's go to have a look at the mint so that unavoidable consequences of an oil put, oil कट के क्या क्या अन और हो सकते हैं, क्या क्या unavoidable consequences। ये देखिए जनवरी 22, अक्टूबर 22, ऑयल प्राइसेस मल्टी ईयर हाई गए, फिर नीचे आ गए।
अब पॉइंट ये है कि ओपेक ने बोला कि भैया आउटपुट हम 2 मिलियन बैरल कम कर देंगे पर डे बीपीडी। इससे प्राइसेस जो हैं वो वर्ल्ड तो ऑलरेडी सप्लाई कंस्ट्रेंट में, प्राइसेस इसके और बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसा मैंने आपसे ऑलरेडी बताया, यूक्रेन रशिया वॉर, उससे जो है ग्लोबल रिसेशन और इंटरेस्ट हाइक उसके साथ जोड़ दीजिए, देन दाम कम हो गए। वेस्ट एशिया ने बोला करंट ऑयल प्राइसेस जो है मार्केट फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, डिमांड और कम हो जाएगी क्योंकि रिसेशन आएगा। आप अगर उसमें माल ज़्यादा दोगे, ऑयल बहुत ज़्यादा पैदा होगा तो माल और कम हो जाएगा, तो इसीलिए आउटपुट अगर कम निकालेंगे हम तेल की तो चांसेस हैं कि उसके दाम बढ़ेंगे। वेस्ट एशियन कंट्रीज को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इम्पैक्ट क्या होगा, इमीडिएट इम्पैक्ट, जब ऑयल प्राइसेस जंप हो गए 1.5%, प्राइसेस जो है जंप होंगे तो नेचुरली वी आर द इम्पोर्टर, हमें और चुभेगा। ओपेक मेंबर्स प्रोड्यूस अराउंड 40% ऑफ द वर्ल्ड क्रूड ऑयल। और ब्रेंट प्राइसेस चेक कीजिएगा, व्हाट इज ब्रेंट प्राइसेस, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। तीसरा, रिडक्शन इंडिया को कैसे करेगा, एज आई एम सेइंग, ओपेक मेंबर्स आर इराक, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इंडिया को मेजर सप्लाई करते हैं ऑयल में, इंडिया ने रशिया से भी सप्लाई की है, रशिया इज ओपेक प्लस मेंबर। सो प्रोडक्शन कट और कॉन्सिक्वेंट राइज से इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। दैट इज वाई व्हाट वी नीड, व्हाट हाउ रिटेल प्राइसेस कैसे होंगे, रिटेल प्राइसेस जो है वो चेंज नहीं हुए हैं मई 2022 से। चांसेस आर दैट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिन्होंने अभी तक प्राइस चेंज नहीं किए हैं, लेकिन अब इमीडिएट में अगर रेज नहीं होंगे तो देन आफ्टर सम टाइम दे विल बी रेज्ड, दो दे आर पॉलिटिकली सेंसिटिव। सो इंडिया क्या करेगा, इंडिया इज गोइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑयल इंपोर्ट। लॉन्ग टर्म डील इट इज फॉर एग्जाम्पल होंगी ब्राजील्स पेट्रोब्रास एंड कोलंबियास इको पेट्रोल। इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग ऑयल फ्रॉम गयाना, कनाडा एंड गैबॉन। दीजिए इनकी लोकेशन चेक कीजिए। और रशियन ऑयल भी इंडिया is also trying to get, but diversification is the key for India. That is what we can say. Moving further, one more thing we are saying, slow down, capex slow down, capital expenditure slow down जिसको हम कहेंगे। तो क्या हुआ, स्लो डाउन कैसे हुआ, तो इंडियन कंपनीज का स्लो डाउन देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का, बिकॉज ऑफ वॉर एंड बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स। आई एम जस्ट शोइंग द मैप, दिस इज द गवर्नमेंट पिंक वन एंड द ग्रे वन इज द प्राइवेट। न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट देखिए आप किसके ज्यादा हुए, आप बस इतना देख लीजिए, आपका भला हो सकता है। सिमिलरली सीजनल पिक, मंथली डोमेस्टिक पैसेंजर आप देखिए कैसे बढ़ रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। Similarly, the deal was called off. Buildex deal was called off, US 4.7 billion deal, shocking the shareholders and legal battle between the two parties. India's manufacturing देखिए upbeat हो रहा है पहले से, it is growing up, PMI। उसके बाद आप देखिए ये बजट एलोकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हर साल बढ़ता चला गया है, it is steadily increased throughout last couple of years. Then we are talking about the investment by venture capital and private equity firms, वो ड्रॉप हो गया है पहले से, देखिए आप पहले से कम हो रहा है वो। फंडिंग फॉल, फंडिंग 11 ट्रिलियन UPI record in September, 11 trillion, major, it has been a primary driver of growth in digital payments for the last few years. So these are the key points which we want to have a look, and we want to move forward with these ideas. Thank you very much for your support and also for your attention. Wishing you all the best for your studies. Prepare in a smart way because there is no shortcut to success. Thanks for being with us. Do share, like and subscribe our channel.